Bismillahirrahmanirrahim. Dear cadets, Assalamu alaikum. Today, the topic or the chapter we are going to start is chapter number 4, and the name of the chapter is The Land and Climate of Pakistan. In this chapter, we will be studying about the land and its different features of the land, and we will be also studying the climate of Pakistan, that what kind of climate the Pakistan is having, and what are its types. So first of all, we will start to discuss with the land. So बेटा इसमें हम लैंड के बारे में सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंड वी विल बी discussing a very important thing which is all about the land, the location of the location of the country, that how or where the Pakistan is located. When we talk about Pakistan, so we should also know that Pakistan is consist of the four provinces. And the provinces are, Punjab is one province, Sindh is the second province, then KPK is the third province, and Balochistan is the fourth province. It is also linked with the area, another area which is known as FATA. And few years ago, 2 years ago, this area of FATA has been merged with the area of KPK and KPK, formerly known as NWFP. बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबसे पहले इस चैप्टर में लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और लैंड यानी पाकिस्तान की लैंड के बारे में, और लैंड के बारे में पढ़ते हुए हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है कंप्राइज्ड है, पाकिस्तान इज कंसिस्टिंग ऑफ फोर प्रोविंसेस: Punjab, Sindh, KPK, and NWFP. FATA is also a territory which is under the control of Pakistan. और previously हमने देखा कि 2018 में it has been merged, वो merged हो गया है, grouped हो गया है किसके साथ, KPK के साथ. ठीक है बेटा. और अब इसके अलावा हम अगर देखते हैं तो हमारे पास इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की टेरिटरी है, कैपिटल, ठीक है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है. अच्छा, हम इनकी अगर बात करें तो इनका एरिया कितना है. तमाम के तमाम प्रोविंसेस जो हैं, हम कहते हैं कि सबसे पहले पंजाब का जो सबसे पहले जो बलूचिस्तान का एरिया है वो सबसे बड़ा प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ लैंड. तो इट हैज़ द एरिया ऑफ 3,47,190 kilometers. Then comes the Punjab, province of Punjab. It has an area of 2,05,345 square kilometers. Then comes the Sindh, which has an area of 1,40,914 square kilometers. Then we have the area of KPK, which is 74,521 square kilometers. And then we have the territory of or the area of Islamabad, Federal Capital Territory, which has the area of 906 kilometers. Okay, beta, the next thing we will be discussing in the in order to understand the Pakistan is the Pakistan is located. We have 7 continents in the world, and Pakistan is located in the continent of Asia. And if we talk about Asia, within the Asia, Pakistan is located in South Asia. बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है एशिया के कॉन्टिनेंट में है, मौजूद है. पाकिस्तान दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और उन 7 कॉन्टिनेंट्स में से पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो एशिया के कॉन्टिनेंट में है, और एशिया में जो पाकिस्तान की लोकेशन है वो साउथ एशिया में उसकी लोकेशन है. फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज को हम स्टडी करते हैं बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी सी इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, वी सी the country which is locating is China. Then in the east of Pakistan, the country which is locating is India. And then in the northwest of the Pakistan is Afghanistan, and in the southwest of Pakistan is the Iran, and in the south of Pakistan is a very big sea which is known as Arabian Sea. Uh, Beta, and Pakistan, the border line which connects Pakistan and Afghanistan is known as Durand line, which is also very much important. And then we talk about the whole coastal area. The coastal area of Pakistan means to say how many kilometers Pakistan is consisted of, how many kilometers. Then we see Pakistan is consisted of 1,050 square kilometers. And Pakistan also has some ports like Karachi port. Pakistan is having 3 ports. One is Karachi port, other is Bin Qasim port, and the third port is Gwadar port.
So after discussing this beta we will be studying the importance of the location of Pakistan, that Pakistan is located in some particular area of the world or in the Asia or South Asia. What is its importance and how the geography of Pakistan means to say the area where the Pakistan is located, how it aids or gives benefits to its political and economical aspect. बेटा हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो बेनिफिशियल साबित होती है, किस तरह उसको फ़ायदा देती है, एडवांटेज देती है उसकी पॉलिटिक्स को और उसकी इकोनॉमिक्स को पाकिस्तान की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट इसमें बहुत सारे बेटा, वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर वन पॉइंट इज एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, पाकिस्तान, इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान देयर इज अ चाइना। और चाइना के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया की सेकंड सुपर पावर आज भी जो है वो है China hai. And China is located in the north of Pakistan, and Pakistan is having very friendly relations with the China, and the highway which connects Pakistan and China is Karakoram Highway. So this is the first point. If any country is located or is a neighboring country to the second superpower, so it is a big advantage. Second advantage is Pakistan Pakistan at its north western side. Pakistan is having the country which is known as Afghanistan, and Afghanistan is a landlocked country. And when we talk about landlocked country, it means what beta, it means what? The second point of this chapter, we are discussing importance of location of Pakistan. Second point is Pakistan is located in the northwest of Afghanistan is located in the northwest of Pakistan. So, and Pakistan provide the land route and the sea route for its trade. If it means बेटा अफगानिस्तान को अगर ट्रेड करना है तो पाकिस्तान उसको जमीनी रास्ता, लैंड का रास्ता भी देता है और सी का रास्ता भी देता है. The and the next point beta we are discussing, which is the point number 4. In the east of Pakistan, we see the country is India. And if we talk about India, we are not having good relations with India. But in the east of India, we have other Muslim countries like Bangladesh, Malaysia, Indonesia. These are the countries. तो अगर बेटा पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है और उसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, लेकिन इंडिया के फिर ईस्ट में कौन से हैं? मुस्लिम कंट्रीज है. अगेन अगर पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाए, पाकिस्तान के जो ईस्ट पे कंट्री है यानी कि इंडिया जो है उससे अच्छे रिलेशन हो गए, तो पाकिस्तान जो है एक बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट हो सकते हैं उसके, क्योंकि इंडिया के ईस्ट में नेक्स्ट टू द इंडिया जो कंट्रीज है वो मुस्लिम कंट्रीज है. तो अभी भी पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन हैं उन मुस्लिम कंट्रीज के साथ, लेकिन इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है. तो यानी कि पाकिस्तान जो है उसको बेनिफिट ये है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द या उसके सराउंडिंग्स में बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं. ठीक है बेटा. द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ऑफ दिस इज के Pakistan, at the southwest of Pakistan, we have a country known as Iran, and Iran is also a Muslim country. So Pakistan also is the member of an organization which was which is also having other Muslim countries. मैं कह रहा हूँ बेटा पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में एक कंट्री है जिसका नाम ईरान है, और ईरान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो पाकिस्तान को उसका बेनिफिट है. और उसके अलावा पाकिस्तान जो कि खुद मुस्लिम कंट्री है, ईरान और टर्की जो है वो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं. और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये मेंबर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के जिसका नाम है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. और ये बेटा ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ताकि ये जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो है आपस में जो है एक दूसरे से जो है एक दूसरे की हेल्प करें और इकोनॉमी को अपनी बेहतर करें, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर इकोनॉमिक एस्पेक्ट. ठीक है. तो ये जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इनका मकसद था इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कि वो अपने जो है बेहतर से बेहतर करें अपनी जो इकोनॉमी को. बेटा नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है बेटा, पाकिस्तान इज सिचुएटेड नियर द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. बेटा ये जो मिडल ईस्ट में कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ये सारे जो कंट्रीज हैं मुस्लिम कंट्रीज जो हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी कहलाते हैं. तो पाकिस्तान जो है इनके भी, यानी कि पाकिस्तान जो है अगर हम बात करें तो मुस्लिम वर्ल्ड के भी मिडिल में है ये कंट्री बेटा पाकिस्तान. तो यानी कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, यानी कि पाकिस्तान जो है मिडल ईस्ट की कंट्रीज से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उनके बल्कि करीब है, तो पाकिस्तान को उस चीज़ का भी एडवांटेज है. और अब फॉर एग्जांपल अगर तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है बेटा, अब आजकल आपको पता है टुडे द वर्ल्ड इज moving with the help of industry. So and in order to, if you want to move
that oil which is present into the Gulf countries. So you need to take help of the Arabian Sea, and without the help of Pakistan or the city of Karachi, you cannot transport your oil from the one area to the other area. So बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान करीब है, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं बेटा, उनको ज़रूरत होती है गल्फ की, उनको ज़रूरत होती है इस ऑयल की, जो कि गल्फ स्टेट्स में यानी मिडल ईस्ट कंट्रीज में मौजूद है। तो आपको पता है कि उसको भी ऑयल को भी मूव करने के लिए आप ऑयल को मूव करते हैं अरेबियन सी के थ्रू, ऑयल को मूव करते हैं बेटा आप अरेबियन सी के थ्रू। और अरेबियन सी आपको पता है कि पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है, तो उस ऑयल को मूव करने के लिए आपको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका जो है वो ये है कि पॉइंट नंबर 8 डिस्कस कर रहा हूँ कि कराची इज एन इंटरनेशनल हार्बर और एयरपोर्ट, ठीक है, यानी कराची का जो एयरपोर्ट है वो भी इंटरनेशनल लेवल का है, और कराची का जो पोर्ट यानी कराची पोर्ट जो है उससे भी बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का है। तो यानी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इस तरह भी बढ़ जाती है, ठीक है बेटा। और अगर मैं इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करूं बेटा, जो है इसका लास्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 12, अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है दुनिया में जो 7 जो एटॉमिक कंट्रीज हैं, यानी कि पाकिस्तान इज आल्सो वन ऑफ द 7 एटॉमिक नेशंस ऑफ द वर्ल्ड जिनके पास एटॉमिक पावर है। तो इस तरह से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ना सिर्फ दुनिया में बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम कंट्री है जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक पावर है। तो इस तरह से बेटा हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और फिर अगर हम पाकिस्तान की लोकेशन की बात करें, पॉइंट नंबर 9 को बेटा देखिएगा। पॉइंट नंबर 9 जो है पेज नंबर 51 पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 9 में देखेंगे इंडस वैली और गंधारा आर द एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड हैव एंड possess import great importance from point of view of tourism. The tourists love to visit the valley of Kagan, Swat and northern areas of Pakistan. बेटा ये जो एरिया है हमारे पास, ये जो इंडस वैली है हमारे पास, ये गंधारा जो ये एरियाज हैं, इधर एक सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत मशहूर है, यानी एक तहजीब ने जन्म लिया था जो कि पाकिस्तान के पास है, वो एरिया इंडस वैली का। तो यहाँ पे लोग जो है डिफरेंट जो हमारे पास टूरिज्म की जो प्लेसेस हैं, लोग वहाँ भी जो है वो मूव करते हैं या आते हैं, टूर करने के लिए आते हैं, जिसमें जो है आपकी कागान की वैली हो गई बेटा, सवात की वैली हो गई, और उसके अलावा हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, तो ये भी जो है पाकिस्तान की लोकेशन में इंक्लूडेड है, और इसकी वजह से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बेटा। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।